Hello, good morning all. Please confirm if I am audible, my screen visible, and it's not a still, it's moving. Okay, so seems like I'm audible enough. I see. Okay, several participants here. Can somebody confirm me in particular whose group Shivank is in? Shivank, because I have not seen him participating in the classes. How is he participating in the activities? Okay, he is in group of. You are a group of four: Vasundhara, Mansi, Rita, and Shivank. And Shivank is not participating. Guys, I told you to drop me mails regarding what are the groups you are forming. I have not received from any one of you. In fact, you were supposed to drop down into a group of three. I'm getting I'm getting suggestions like do this or don't do that. Why don't you do what was asked, what was decided yesterday? I agreed for reshuffling just because I wanted you to be comfortable. I don't want you to be laid back comfortable. इतना भी नहीं होना. I want you to face the nuances of working in a team. When you will be in a job, you will be working in a team. You will have good bosses, you will have bad bosses. You will have good colleagues, you will have bad colleagues. Well, you will have to make your way. So start getting that taste. Final call today, guys. After the class, I'll expect you people dropping me three names each group, along with the group name. If that doesn't happen, well, random sampling. For now, starting off with the Spark funds exercise. The company was Spark Funds. It is your client, and most of you have done fantastically. But still, I would want you to. I want you to see one extra approach. I am not saying it is better. I am not saying it is anyway different. No different तो है खैर. मैं जस्ट वो दिखाना चाह रहा हूँ अगर मैं सोच रहा होता तो मैं कैसे कर रहा होता. I will also pinpoint a few pointers which were worth your attention and which you didn't pay heed to. We'll see. Table 1.1. पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था?
Well, here it is. First question: How many unique companies are present in rounds 2? कुछ नहीं किया है, डेटा दोनों अभी लोड किए हैं, राउंड्स फाइल में वो पूछ रहा है हाउ मेनी यूनिक कंपनीज. To read these, most of you have figured this out. There is function read.delim. Delim in the sense delimited. Comma separated values are also known as comma delimited file. इसको बोलते हैं. तो अगर CSV फाइल है तो उसको पता है सेपरेटर कॉमा होगा, read.csv. जब टेक्स्ट फाइल थी, टेक्स्ट फाइल में आपने क्या देखा? It is not CSV. It is not comma separated. So sometimes this will happen. Majority of the times you will get CSV file. Sometimes it will happen it is file is in some other format. Maybe it is a text file, maybe it is a JSON file, maybe it is cloud. ठीक है जी, किसको कैसे रीड करना है और अगर नहीं पता तो कहाँ ढूंढेंगे? आई वॉन्टेड यू टू एक्सप्लोर दैट. यू हैव डन दैट. फर्स्ट क्वेश्चन वॉज राउंड्स डेटा सेट में कितनी कंपनीज है, यूनिक कंपनीज कितनी है, रिपीट तो हो रही होंगी. जरा बताओगे ये डेटा समझा आप लोगों ने? क्या समझ आया इससे डेटा से? मैं बार बार बोलते रहा हूँ कि बिफोर यू जंप इनटू एनालिसिस, try to learn the data first. What this data is talking about. किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या डेटा दे दिया मैंने तुम लोगों को? एक कंपनी है, ग्राउंड फाइल है, क्या क्या है? एक्सटर्नल डेटा सेट है, हेल्प फंक्शन तो मिलेगा नहीं, हेल्प डॉक्यूमेंट तो मिलेगा नहीं इनका. अरे बोलोगे? This should again become eye opener for you. Before jumping into the analysis and answering some questions, try to understand what this data is talking about. You have received two data sets. One is about companies. कंपनीज यानी ये कुछ स्टार्टअप्स का डिटेल है, कुछ स्टार्टअप्स का डिटेल है. और क्या क्या डिटेल है उसमें? परमालिंक. व्हाट इज परमालिंक? परमालिंक क्या होता है? Permalink, as the name suggests, it is permanent link for a company. Yes. You see how misplaced are the notions. Vasundhara, it is not data of Sparks. This is data of some startups. कुछ startups हैं और उनका डेटा है. उस स्टार्टअप को इंडिविजुअली उन्होंने रिकॉग्नाइज करने के लिए किसने? क्रंच बेस ने. यू रिमेंबर crunchbase.com से लिया था ये डेटा मैंने. आई लेफ्ट यू अ हिंट, नो? डोंट रिमेंबर? ईमानदारी से बताओगे जरा, को गया था crunchbase.com पे देखने के लिए?
Crunchbase.com ने क्या किया है, दे रिकॉर्ड दिस डेटा कि कौन कौन से स्टार्टअप हैं, और उन स्टार्टअप्स को उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है अंडर परमालिंक। परमालिंक इज एक्टिंग लाइक अ यूनिक की है। वाई यूनिक की? क्या जरूरत पड़ गई इस यूनिक की? ये देख रहे हो, एक स्टार्टअप का नाम है हैश फेम। ना फेम नाम का कोई स्टार्टअप दूसरा भी हो सकता है, मे बी। हो सकता है। कोई है क्या, जानते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? Yes, it is possible. It may happen. On the top of my head is Manthan Software. There is a startup of India, Manthan Software, and then there is another startup with the same name, with the origin in Sweden. So it's possible. I don't know why Sweden one they are naming Manthan. हमें तो इंडियंस को समझ आता है मंथन, तो नाम रखा होगा उन्होंने कुछ सोच के, बट दे आर ऑल्सो नेमिंग देयर फ्रॉम मंथन। दोनों चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। देन देयर इज होम पेज यूआरएल, वेबसाइट ऑफ द स्टार्टअप, जो भी उनका होगा। हाँ, सभी का होता है आजकल। वेबसाइट इज ऑलमोस्ट मैंडेट currently. Then what it is? Give me a moment there. So home page URL, nothing specific, just the website home page address. एक बात बताओ, ये तो यूनिक ही होता होगा सब कंपनीज का, या कंपनी किसी भी कंट्री में चल रही हो, वेबसाइट तो नहीं मिलेगी सेम नेम से। अगर मेरी एक कंपनी है विद नेम एक्स वाई थी और तुम्हारी भी है एक्स वाई थी, दोनों की वेबसाइट तो सेम नहीं हो सकती। वेबसाइट तो दोनों को अलग अलग लेनी पड़ेगी, नेम शायद सेम हो जाए, मेरा इस स्टेट में तुम्हारा उस स्टेट में, मेरी कंपनी वहाँ तुम्हारी वहाँ। यस और नो? बात तो समझ आ रही है? वापस आता हूँ उसी क्वेश्चन पे, वाई यूनिक की? वाई अलग से यूनिक की चाहिए जब होम पेज यूआरएल काम कर तो रही है वही वाला। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम मानसी और शुभम, बट अदर्स शुड स्पीक दिस आउट। जो लोग एसक्यूएल सेशंस में थे उनको अब तक ये तो समझ आ रहा होना चाहिए। बात समझ आ गई? मैं कह रहा हूँ कि वाई यूनिक की कॉलम चाहिए, यूनिक की या प्राइमरी की? हाँ, प्राइमरी की। अरे तो ये भी तो एक्ट कर सकता है एज प्राइमरी की होम पेज यूआरएल। प्राइमरी की का फंडा क्या था कि हर रो के लिए वो यूनिक होना चाहिए। मैं हर रो में एक कंपनी का डेटा रखना चाहता हूँ और उस कंपनी को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। तो मैंने देखा नेम तो कॉमन हो सकते हैं दो कंपनीज के, सही बात है। वेबसाइट कॉमन हो सकती है क्या? वेबसाइट तो नहीं होगी? व्हाई कांट दिस एक्ट एज प्राइमरी की हेयर इटसेल्फ? क्यों मेरे को अलग से एक कॉलम बनाना पड़ता है?
Bang on person. Finally somebody talking sense. हाँ सही कह रहा है वो बिल्कुल। सी crunchbase.com कैन नॉट रिलाई ऑन होम पेज यूआरएल बिकॉज जरूरी थोड़ी है सब कंपनीज का हो, अगर नहीं हुआ फिर तो हो। क्या कह रहे हैं वो crunchbase.com, होम पेज यूआरएल उनकी हो या ना हो, वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट। तो हम अपना अपनी तरफ से उनको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर देंगे और वो कॉलम ऐड कर लेंगे एंड दैट यूनिक आईडी विल आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर कंपनी। अब होम पेज यूआरएल हो या ना हो, उसने अपना नाम बताया हो ना बताया हो, और कुछ हो या नहीं हो। रिमेंबर बैंक एग्जाम्पल, बैंक के उसमें मैं बात कर रहा था कि कस्टमर्स का मोबाइल नंबर भी तो एक्ट कर सकता है। आपका मोबाइल नंबर कैन एक्ट लाइक यूनिक आईडी इन एम्प्लॉय टेबल और मे बी बैंक्स कस्टमर टेबल। तो बैंक क्या है, कोई भी कंपनी क्यों अलग से एक एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम लगाती है? बिकॉज दे कैन नॉट रिलाई ऑन यू ना। मे बी यू डोंट कीप अ मोबाइल नंबर, मे बी यू कीप मल्टीपल मोबाइल नंबर्स। They don't want to get into your standards, they will keep their own standard. Okay, I think fair so far। फिर और क्या डेटा है आपने आपके पास? कैटेगरी लिस्ट किस तरह से दिया है उन्होंने? कैटेगरी लिस्ट, कैटेगरी लिस्ट मीन्स क्या बिजनेस है इस कंपनी का, जैसे स्टार्टअप का, व्हाट इज द इंडस्ट्री दे पर्टेन टू, एंड मीडिया, क्यूरेटेड वेब। अच्छा उन्होंने वो भी दिया है, उन्होंने सब कैटेगरीज भी दिए हैं, लाइक द मेजर कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी इज एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स फॉर दिस कंपनी। और कैसे दिया उन्होंने? सेपरेटर इज आपका वो पाइप सिंबल, उससे सेपरेट कर करके दिया है। सब कैटेगरीज आर major business is application platform, then there are subcategories of real time, social network, media। ठीक है जी, कुछ इस तरह से उन्होंने दिया है। देन देयर इज स्टेटस। स्टेटस मींस स्टेटस क्या? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग, कुछ और भी हो सकता है क्या स्टेटस? देखा किसी ने? स्टेटस के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं था तो आप लोगों ने जहमत भी नहीं उठाई देखने की। आई नो दैट, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम फॉर नाउ। बट नाउ यू शुड गेट इनटू द हैबिट ऑफ बीइंग इंक्विजिटिव, यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट इसका क्या मतलब है। स्टेटस मीन्स ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग, क्या कुछ और स्टेटस हो सकता है? यस हो सकता है। सम कंपनी में बी इनएक्टिव, सम कंपनी में बी बैंकरप्ट, सम कंपनी में बी टेकन ओवर बाय समबडी एल्स। तो बहुत सारे स्टेटस हो सकते हैं। फॉर नाउ हमारी प्रॉब्लम इससे नहीं थी तो इसकी बात भी नहीं करते हम ज़्यादा, बाद में देखेंगे। कंट्री कोड, व्हाट इज दैट? कंपनी किस कंट्री को बिलोंग कर रही है एंड दे आर यूजिंग कोडिंग फॉर दैट, वेरी इंट्यूटिव कोडिंग। आई एन डी मीन्स you know that, USA, very fine। CHN, HKG, what is the HKG? Yes, Hong Kong, my favorite। Been to Hong Kong once and I will love it till my expiry date। State code, within country code they are naming state code, उन्होंने कुछ अपना स्टेट कोड दिया हुआ है 16 DE 22। अब इनका क्या मतलब है पता नहीं क्या मतलब है, उन्होंने अपना कुछ इंटरनल कोडिंग किया होगा। बट one thing worth noticing is, what do you see here? What do you see here? It's white blank, white blank, it is not NA, it is not even NA, it is just white blank। NA भी नहीं है, NA होता है तो दिखता है यहाँ पे, देखा होगा आप लोगों ने। हम्म, खैर बाद में टेंशन लेंगे।
region, city, founded it. So pretty much, I think very intuitive. रीजन सिटी किस रीजन में है, उस कंट्री में है, किस सिटी में ऑपरेट कर रही है और किस डेट को फाउंड हुई थी कंपनी, फाउंडेशन डेट क्या थी। तो दिस इज ऑल इन ऑल। अल्फा न्यूमेरिक, नॉट अल्फा न्यूमेरिक, प्रसून इसकी बात कर रहा हूँ। यू सी दीज आर जस्ट ब्लैंक्स, वाइट ब्लैंक्स। वैल्यू भी नहीं है, एन भी नहीं है। इसकी बात करूंगा अभी थोड़ी सी देर बाद। एक डेटा ये था आपके पास, दूसरा डेटा वाज राउंड्स। व्हाट इज दैट? दूसरा डेटा ये क्या इन्फॉर्मेशन रखता है? ये फिर इट इज टॉकिंग अबाउट फंडिंग राउंड्स। अब उधर स्टार्टअप्स का डेटा था, स्टार्टअप्स के डिटेल थे। रिमेंबर एसक्यूएल में हमने बात किया था, योर डेटा में एग्जिस्ट इन मल्टीपल फाइल्स, इट कैन कम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। स्टार स्कीमा की इसीलिए जरूरत पड़ती है। नाउ दिस इज योर फंडिंग राउंड्स। क्या क्या डेटा रख रहे हैं ये, कि उस राउंड में कौन सी कंपनी आई थी। कैसे आइडेंटिफाई करोगे उस कंपनी को? परमालिंक से। नाम से तो हो नहीं पा रही थी, हम समझ चुके हैं उस बात को अब। तो हमें यूनिक आईडी चाहिए, तो परमालिंक से हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी कंपनी आई इस राउंड में। उस राउंड को भी उन्होंने कुछ यूनिक की दिया है। समझ पा रहे हो? राउंड फाइल में अब ये प्राइमरी की है, फंडिंग राउंड टाइप। दिस इज द यूनिक आईडी है। ओके, नाउ इट इज टेलिंग यू फंडिंग राउंड टाइप। इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? कैन somebody say something about this? I mean, not just wild guess. If you know, then you speak about it. How the companies have got their funding? Person, okay, not okay. ठीक है, but not very pinpoint. Anybody else? Sanjana, Devesh, Varun, pointing you because very silent today. क्या हो गया? You people generally contribute. संकल्प का ठीक है, वो तो तब तक नहीं बोलेगा जब तक मैं पहुंच ही नहीं जाऊंगा। जब तक मैं उसकी कोहनी नहीं मोड़ दूंगा पहुंच के, वो तब तक कुछ नहीं बोलेगा। व्हाट बेस्ड कंपनी फंडेड, अच्छा चलो ठीक है। व्हाट हैपेंस इज व्हेन अ इन्वेस्टर इज, जब कोई इन्वेस्टर फंड कर रहा है किसी कंपनी को, इन्वेस्टर फंड्स अ स्टार्टअप। नाउ कैसे कैसे हो सकती है फंडिंग, किन किन बारे में बात हो सकती है? सपोज आई एम अ स्टार्टअप, आई हैव अ वेरी गुड आइडिया, आई हैव अ वेरी गुड आइडिया बट आई डोंट हैव एनी मनी। और मेरे को कोई इन्वेस्टर मिल गया। आई हैव जस्ट एन आइडिया, नो मनी, नो सेटअप।
और अब मेरे को ये इन्वेस्टर मिल गया, और वो इन्वेस्टर कह रहा है कि चल ठीक है, आइडिया तेरा ठीक ठाक सा लग रहा है, कर ले काम अपना, लगाता हूँ मैं पैसे। थिंक अबाउट इट, किस टाइप की फंडिंग हुई है? दिस इन्वेस्टर इज एक्टिंग लाइक एन एंजल फॉर मी। यार कोई क्रेडिबिलिटी थोड़ा ही है मेरा, अपना आइडिया तो सबको ही अच्छा लगता है, मुझे भी लग रहा है। पैसे पैसे के नाम पे धेला नहीं है मेरी जेब में, और वो इन्वेस्टर फिर भी फेथ कर रहा है मुझ पे, तो कैसी फंडिंग हुई है? नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रहा मजाक? किस टाइप की फंडिंग को हमने बोला? एंजल फंडिंग। दिस इन्वेस्टर इज एक्टिंग लाइक एन एंजल टू मी। सपोज यही केस कुछ ऐसा रहता, दिस इज इन्वेस्टर एंड दिस इज स्टार्टअप, all setup in place, all infra in place, चलो ये बात हुई, अब ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए जनरली। अब ठीक कर रहे हो आप लोग, मोस्ट ऑफ यू हैव डन दिस। यूनिक निकाल लिए और जे में सेव कर दिया, जे की लेंथ चेक कर ली, ऐसा कर सकते हो। आपको ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट मालूम है, एक ही बार में कर सकते हो। फंक्शन विद इन फंक्शन, तो यूनिक अंदर है, पहले यूनिक निकल जाएंगे फिर उसकी लेंथ चेक हो जाएगी। तो दोनों में ही बराबर बराबर कंपनीज हैं, नथिंग स्पेसिफिक। आपसे पूछ रहा है, देन उसने पूछा क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉलम कैन बी यूज्ड एज यूनिक की।
तो कैसे फाइंड आउट किया है? आई डोंट नो कैसे किया है आप लोगों ने। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है? ये पता लग जाए कि फाइंड आउट करने के लिए, यूनिक की करने के लिए, देयर इज फंक्शन एंड डिस्टिंक्ट ऑफ dplyr जो बताता है क्या, यही लेंथ ऑफ यूनिक वैल्यूज। यूनिक वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं, यूनिक काउंट करने के लिए लेंथ एंड डिस्टिंक्ट दोनों काम एक साथ कर देता है। वो पहले यूनिक वैल्यूज निकालेगा और फिर उन्हें काउंट कर लेगा, बता देगा कितनी वैल्यूज। तो कंपनीज डेटा सेट में हमने देख लिया एंड डिस्टिंक्ट। और हम क्या देखते हैं भाई, यूनिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतनी ही यूनिक वैल्यूज होंगी इस कॉलम में। तो इस डेटा सेट में नंबर ऑफ रोज कितनी है, कितनी है? तो मैं वो कॉलम देखना चाहता हूँ जिसमें जिसमें यूनिक वैल्यूज इतनी ही हों। कौन सा है? एक ही है। नेम देखूं तो कितने हैं यूनिक वैल्यूज, यूनिक नेम्स काफी कम है। इसका मतलब कोई 300 कंपनीज आर देयर जिनका या तो मिसिंग है या डुप्लीकेट है। होम पेज यूआरएल देख रहे हो, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। द यूनिक वैल्यूज आर ओनली 61,000 इन अ डेटा ऑफ 66,000। इसका मतलब 5,000 डेटा, 5,000 रोज का डेटा ऐसा है जहां पर होम पेज यूआरएल या तो गलत हो रही है, डुप्लीकेट आ रही है किसी वजह से, या वो मिसिंग है। ठीक, यूनिक वैल्यू पता चल गई। क्वेश्चन 4 कहता है, आर देयर एनी कंपनीज इन राउंड फाइल विच आर नॉट प्रेजेंट इन कंपनीज। हम क्या देख रहे हैं कि कंपनीज तो दोनों में इतनी इतनी ही हैं, कंपनी परमालिंक दोनों में 66,000 इतने हैं, बट क्या ये वही कंपनीज हैं? तो देयर इज इन यूटिलिटी, आप में से कई लोगों ने यूज भी किया है, डिप्लायर का इन यूटिलिटी है। वी कैन कंपेयर दिस वैल्यू, वी कैन कंपेयर दिस सेट ऑफ वैल्यूज इन दिस सेट ऑफ वैल्यूज। वो एक एक वैल्यू यहाँ से उठाएगा और इस पूरे सेट में चेक कर देगा, वो जहां भी मिलेगी जिस भी नंबर पे, इट विल कॉल इट ट्रू अदरवाइज फॉल्स। सिंपल। वही ट्रू 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 आ रहे हैं, इनका सम करते हैं तो पता चल जाएगा कितने ट्रू आए हैं। कितने ट्रू आए हैं? उतने ही ट्रू आए हैं जितने राउंड्स में नंबर ऑफ रोज हैं। इसका मतलब राउंड्स के सारे परमालिंक कंपनीज परमालिंक में मिल गए हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत? सब बढ़िया। मर्ज फंक्शन आपको मिल गया होगा। हाँ, ज्वाइन, जैसे ज्वाइन करते थे एसक्यूएल में। आपके पास दो डेटा सेट अलग अलग, यू हैव डेटा फ्रॉम कमिंग फ्रॉम टू सोर्सेस, तो क्या करते थे एसक्यूएल में, ज्वाइन करते थे। यहाँ पे मर्ज बोल रहे हैं उसको। सिंटैक्स भी यू पीपल हैव फाउंड आउट। मैं क्या कह रहा हूँ, मर्ज राउंड डेटा सेट विद कंपनीज डेटा सेट, और मेरे को बताना पड़ेगा कौन सा कॉमन कॉलम है। आई नीडेड ए कॉमन कॉलम ज्वाइन करते वक्त, याद आ रहा है? मैं बता रहा हूँ राउंड्स में उस कॉलम का नाम क्या है, बाय डॉट एक्स। इट इज ट्रीटिंग लेफ्ट डेटा सेट एट एक्स, राइट डेटा सेट एज वाई। तो बाय एक्स, एक्स में उस कॉलम का नाम है कंपनी परमालिंक, वाई में उस कॉलम का नाम है जस्ट परमालिंक। एंड वी आर डन विद दिस। It will take a few seconds and here it is. नंबर ऑफ रोज, लास्ट क्वेश्चन यही पूछा था उसने, नंबर ऑफ रोज बता दो मास्टर डेटा सेट की। तो वी हैव एंडेड अप विद अ मास्टर डेटा सेट जहां पर अपर केस लोअर केस का प्रॉब्लम नहीं है। नाउ बिगिंस एक्चुअल एनालिसिस। हमसे उसने क्या बोला,
टेबल 2 में क्या बोलता है? टेबल 1 इज प्रीटी मच सेट। टेबल 2 में क्या बोला उसने? पहला क्वेश्चन, एवरेज अमाउंट ऑफ वेंचर टाइप। ओके, मेरे को निकालना है एवरेज फंडिंग अमाउंट। रिमेंबर, ये क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस आर डिजाइन टू टेक यू टुवर्ड्स योर एनालिसिस। आपका एनालिसिस में क्वेश्चन क्या आया था कि आपको एक सुटेबल फंडिंग टाइप निकालना है इस कंपनी के लिए, क्योंकि इनका एक कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट था? इनका एक कांस्टेंट है फंडिंग अमाउंट को लेकर के, आपके क्लाइंट का। बता दिया था उन्होंने पहले, क्या था वो? रिमेंबर, यस करेक्ट, कि फंडिंग 5 to 15 मिलियन के बीच होनी चाहिए। उनका उससे डेविएट होने का प्लान नहीं है। यानी इन अदर वर्ड्स क्या हिंट किया उन्होंने, कि उनको एक सूटेबल फंडिंग टाइप करके बताओ कि हम इस टाइप की फंडिंग कर पाएंगे, हम एंजल टाइप की कर पाएंगे, सीड टाइप नहीं कर पाएंगे, या मे बी इक्विटी टाइप कर पाएंगे, डेट टाइप नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसा जो भी है। कहने का मतलब ये था। तो हम वही देख रहे हैं, पर राउंड फंडिंग उनको 5 to 15 मिलियन करनी है। मैं वही देखना चाह रहा हूँ कौन से टाइप की फंडिंग होती है ऐसी। उन्होंने बोला है 4 टाइप की निकालनी है। तो आप में से कितने लोगों ने ऐसे किया है कि वेंचर टाइप डेटा निकाल लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, विच विच फंडिंग राउंड टाइप इज इक्वल टू वेंचर, और जब वो डेटा सबसेट निकल आएगा उसमें मीन अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। कितने लोगों ने ऐसे किया? कुछ लोगों ने किया है। आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, बट बट इज देयर अ बेटर वे? यस, देयर इज अ बेटर वे। फिर आपने क्या किया होगा? एंजल टाइप निकाला होगा, फिर सीड के हिसाब से डेटा फिल्टर किया होगा, फिर प्राइवेट इक्विटी के हिसाब से किया होगा, है ना? तो 4 आपके सबसेट बने और चारों का आपने मीन 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 कैलकुलेट किया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी हमारे पास एक बेटर बेटर तरीका है तो सही, हमारे पास ग्रुप बाय। मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रुप बाय कर दो। फंडिंग राउंड टाइप मास्टर फ्रेम को ग्रुप बाय कर दो अकॉर्डिंग टू फंडिंग राउंड टाइप, और एक नया वेरिएबल बना दो टाइप वाइज ग्रुप। तो वहां पर ग्रुपिंग हो चुकी है इंटरनली। और अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक डेटा फ्रेम बनाओ जहां पर हम समराइज कर देंगे टाइप वाइज ग्रुप को, और देखना क्या है मेरे को, एवरेज ऑफ रेज्ड अमाउंट यूएसडी। ठीक। तो इससे होगा क्या? अब फंडिंग राइट वेंचर था या सीड था या प्राइवेट इक्विटी, जो भी था उसने, वो सारे दिख जाएंगे आपको। देखो डीएफ में सारे दिख गए, एंजल, कन्वर्टेबल डेप्ट, ये जितने उसने पूछे थे, सीड, अनडिस्क्लोज्ड वेंचर, जो भी थे, ये सब दिख गए। और एवरेज फंडिंग उनकी यहाँ सामने दिख जाएगी। तो एक ही बार में चारों क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। समझ गए बात? अब मुझसे कुछ गलत हो गया लेकिन यहाँ पे कौन बताएगा? NA.RM ट्रू कर लेना चाहिए था। गलत नहीं हुआ है, इट इज हेयर इंटेंशनली। बताता हूँ। See, अब आप लोगों को कोडिंग आने लगा है। अब आप वो समझ गए हो कि इसका इलाज क्या होता है। नाउ आई वांट यू टू गेट इनटू बिजनेस। यहाँ पर एन ए आ गए, क्यों आ गए? क्योंकि फंडिंग राउंड टाइप में मिसिंग वैल्यूज होंगे। समझ रहे हो बात? फंडिंग राउंड टाइप कह रहा हूँ, जो अमाउंट था, फंडिंग अमाउंट जो था, कहाँ गया? हाँ, ये देख रहे हो, इसमें कहीं कहीं मिसिंग वैल्यू आ रहे हैं। और हमें क्या पता है, अगर एक भी मिसिंग वैल्यू होता है तो फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर पाता आर।
आर को सिर्फ अवेलेबल वैल्यूज चाहिए। नाउ आई वांट यू टू गेट इनटू बिजनेस। क्या करना है? थिंक अबाउट इट। अगर आपने बोला na डॉट आर एम इज इक्वल टू ट्रू, बता रहा हूँ क्या है, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस डॉट एन ए मास्टर रेज्ड अमाउंट में मिसिंग वैल्यूज हैं कितने, जरा देखें कितने हैं। देखे ही किसी ने, देखे थे कि नहीं? देर आर सम ऑलमोस्ट 20,000 मिसिंग वैल्यूज, ऑलमोस्ट 20,000 मिसिंग वैल्यूज। परसेंटेज वाइज बात करूं, अगर आपके पास टोटल डेटा है 1,15,000 रोज का, और उनमें से 20,000 वैल्यूज मिसिंग है। परसेंटेज वाइज अगर बात करूं 17-18% हुआ ये। एन ए डॉट आर एम इज इक्वल टू ट्रू करते ही आप क्या कह रहे हो कि ये 20,000 राउंड्स छोड़ दो और बाकी जितने अवेलेबल हैं उनका एवरेज कैलकुलेट करके हम फैसला ले लेंगे। क्या ये सही तरीका है? हाँ वही कह रहा हूँ शुभम, इग्नोर कर रहे हो एक तरह से। एन ए डॉट आर एम अगर कर रहे हो, अगर मैं यहाँ कर दूँ एन ए डॉट आर एम, इसका मतलब मैंने कहा ये 20,000 वैल्यूज छोड़ दो। ये 20,000 राउंड्स में कितनी फंडिंग हुई है मुझे कोई मतलब नहीं उस बात से। बाकी जो जो हुई है उसमें देखते हैं एवरेज कितनी आ रही है, और उसमें एवरेज जो सूटेबल आ रही होगी मेरे हिसाब से, मैं वो अपने क्लाइंट को बता दूंगा और वो वहां पे फंडिंग करनी स्टार्ट कर दे। क्या ये ठीक तरीका है? 20,000 राउंड्स का डेटा तो तुमने छुपा ही लिया अपने क्लाइंट से, बाकी की बात कर रहे हो तुम मुझसे। कुछ लोगों ने सजेशन किया है, वसुंधरा, प्रसून, दे आर सजेस्टिंग कि जहां जहां ये मिसिंग वैल्यू आ रही थी उनको ट्रीट कर लेते हैं दैट एन ए इज इक्वल टू जीरो। ऐसा होता है क्या? आपकी बार बताता हूँ, एसेंशियली आप क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो मालूम है, कि ये जो 20,000 राउंड्स थे जहाँ एन ए आया है, आप एसेंशियली कह रहे हो कि उन राउंड्स में देयर हैज बीन नो फंडिंग, कोई फंडिंग अमाउंट नहीं हुआ उसमें। और अब आप एवरेज कैलकुलेट करोगे और उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा वो अपने क्लाइंट को बता दोगे। क्या ये तरीका ठीक है? आप मान रहे हो, यू आर एज्यूमिंग कि उन 20,000 राउंड्स में कोई फंडिंग नहीं हुई। इस एजम्पशन के साथ आपने कैलकुलेट किया और अपने क्लाइंट को अपना डिसीजन बता दिया। क्या ये ठीक है? आई होप यू आर रियलाइजिंग वेयर आई एम गोइंग विद दिस। Every now and then there will be missing values in data, and missing values is notorious, very very notorious. Missing values, because this is something you cannot do anything about it. You don't know it is missing. So then comes assumption. You have to assume something. Anyway, your assumption may go wrong. Anyway, it is not perfect, but at least it should be in line with interest of your project, your client. At least it should be not haywire. ठीक है, बाकी लोग? So I'm calling it for a break, ठीक है? And I want you to think about it. I'm leaving you with a question. No, no, Shubham, again this is a wild guess. Can we replace it with any? You can do anything with it. But why you are doing it? I'm leaving you with a question. ये पता है कैसे सॉल्व होगा? इन मिसिंग वैल्यूज का करना क्या है?
ये तब समझ आएगा जब इस बिज़नेस को समझोगे। क्यों हो जाती होंगी मिसिंग वैल्यूज़? क्यों आती होंगी मिसिंग वैल्यूज़ डेटा में? क्यों नहीं बता रहे ये लोग कि कितनी फंडिंग हुई है हमें? क्यों नहीं पता चल पा रहा मेरे को? क्रंच बेस क्यों नहीं बताता ये मेरे को? मिसिंग वैल्यूज़ तब आए हैं जब वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। इट इज़ मिसिंग। समबडी may has made it unavailable for me. Why they are doing it? Can you think of some reasons? I am calling it for a break. I am leaving you with a question, and I will wish for you people to come up with a couple of reasons, possible reasons. Okay, see you there. Okay, very fine. ठीक है जी. I left you with a question. Can you think of a probable reason why these funding amounts are missing? Revealing the amount might affect Spark decision. Not exactly, Shubham. It is not about a Spark. This is the data which is publicly available. Spark ने तो ये डाउनलोड किया है एनालिसिस के लिए. So it is nothing about a Spark. Small amount of money compared to what others have done. Okay. Fraudulent. Okay. Companies may not have permitted to display. Okay. Want to manage it. Do not want to pay tax. Okay. Okay. Very fine. So I hope you people got the gist. When you start diving deep and you start pondering about it, that why it must have happened this way. See, being an analyst, this will become integral part of your job. Brainstorming, thinking, being inquisitive. I must tell you this, being inquisitive is the single best thing you can do in this profile. You see, in startup funding, it is not uncommon. स्टार्टअप्स के केस में फंडिंग को अनडिस्क्लोज रखना it is way too common for several reasons. Reason number one, investor doesn't allow, for obvious reasons. उनको टैक्सेशन का इशू हो सकता है, लीगल का इशू हो सकता है. सही बात है. तो इन्वेस्टर कह रहा है कि हम फंडिंग तो कर रहे हैं आपको, लेकिन आप बताओगे नहीं है. यू डोंट डिस्क्लोज कि हम कितना अमाउंट दे रहे हैं. सेकंड, जस्ट द वाइस वर्सा केस. स्टार्टअप डजंट अलाउ. इन्वेस्टर का तो चलो समझ आता है, कुछ लीगल या टैक्सेशन की बात हो सकती है. स्टार्टअप क्यों नहीं अलाउ करेगा? अगेन फॉर ऑब्वियस रीजन, उनको भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं. स्टार्टअप के इश्यूज कैसे होते हैं? स्टार्टअप के इश्यूज देन फर्दर गो. एक इशू जो वेरी कॉमन, इफ आई टेल यू, सपोज आई एम अ स्टार्टअप और मेरे को फंडिंग के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट से बात कर रहा हूँ और मेरी गूगल से भी बात हो रही है. तो सपोज मेरे को माइक्रोसॉफ्ट से फंडिंग मिल गई, मैं क्यों बताऊँ गूगल को कि मेरे को फंडिंग मिल गई है ऑलरेडी?
अगर मैं बता दूंगा, गूगल क्या बोलेगा कि अब तो तुम कॉम्पिटिटर हो गए हो ना मेरे, क्यों बात करेंगे वो मुझसे? गेटिंग इट? और क्या बात हो सकती है, बोला है किसी ने? ऐसा भी होता है मैनी अ टाइम्स। द वेरी इंडियन रीजन। सपोज आई एम अ स्टार्टअप विद एन आइडिया, और मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रहा हूँ। तो मैं आई एम सिटिंग इन द राउंड एंड आई एम गेटिंग जीरो फंडिंग और मिनिमल फंडिंग। फाइंडिंग फंडिंग। अगर मेरे को, मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रहा हूँ, आई एम अपियरिंग इन सेवरल राउंड्स, और मेरे को कोई खास फंडिंग मिल नहीं रही है, तो क्यों बताना है दुनिया को गा गा के कि मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा? विद टाइम इट विल बिकम क्वेश्चन मार्क ऑन माई क्रेडिबिलिटी ना। यस और नो? कि 6 महीने से घूम रहा है, फंडिंग नहीं मिली इसको कोई, घटिया ही होगा आइडिया इसका। यस एग्जैक्टली। रेपुटेशन का सवाल है भाई। तो देयर में बी सेवरल रीजन जिनकी वजह से ये एनए आ सकते हैं। इन्वेस्टर फंडिंग की है मिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेकिन बताना नहीं चाहते। स्टार्टअप्स फंडिंग मिली है मिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेकिन कंपटीशन का इशू है, नहीं बताना चाहते। फंडिंग मिली है या तो जीरो मिली है या बहुत ही कम मिली है, अब इज्जत बचाने की बात है। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कारण समझ आए मिसिंग वैल्यू क्यों आ गए हो। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। करना क्या है? अगेन थिंक अबाउट इट। डिस्कस among yourself if you wish to. I'm muting for a few seconds. The crunch of the discussion is, the crunch of the discussion is, what do you think? Start thinking about each and everything, each and every aspect. Very often than not, you will be countered by these kind of dilemmas. There will be ambiguous decisions you will have to take. What will be the lifesaver is one thumb rule. Whatever analysis you do and whichever choice you take to proceed, you should have a reasonable explanation to that. अब इन मिसिंग वैल्यूज का क्या करना है? हाँ कुछ भी करो। तुम कह रहे हो इन्हें मैं जीरो रख लूंगा, हाँ बिल्कुल रख सकते हो। somebody said that मीन अमाउंट से रिप्लेस कर देते हैं, हाँ कर सकते हो। और मे बी na.rm रिमूव भी कर सकते हो। बट नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, अगर स्टेक होल्डर अगला क्वेश्चन आपसे कर रहा है, वाई आर यू डूइंग दिस, वाई यू हैव मेड दिस चॉइस, देन यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट। मिसिंग वैल्यू है, ट्रीट भी करना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसका। तो जो भी करो, ये सोच के करना कि इसका अगर उत्तर देना पड़ जाए तो क्या दोगे। इफ आई वर डूइंग दिस एनालिसिस, व्हाट आई विल डू इज, पहले तुम्हें बताओ, अच्छा तुम क्या करोगे? मैं तो करूंगा ही जो करूंगा।
ओके शुभम, ठीक है, ये करोगे। और अब क्लाइंट पूछ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, ऐसा करके क्यों बता रहे हो मेरे को। एक बात बताओ, मीन वैल्यू से इन्हें रिप्लेस करोगे। मेरे को देखनी थी मीन फंडिंग पर राउंड, हर राउंड में कितनी फंडिंग हो रही है, डिफरेंट काइंड। एक बात बताओ, मीन वैल्यू से रिप्लेस करूंगा तो उस मीन पे कैलकुलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मीन पहले भी उतना ही आ रहा था, जो एन ए डॉट आर एम से आएगा बाद में भी उतना ही आ रहा है। हाँ तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ शुभम, मीन वैल्यू तुमने पहले मीन वैल्यू से उसे रिप्लेस कर लिया और उसके बाद मीन कैलकुलेट करके बता रहे हो कि इस टाइप की फंडिंग में मीन इतना आता है, तो वो तो उतना ही हुई ना, मोर और लेस। अच्छा तुम ओवरऑल की बात कर रहे हो, ओके, कि सारी ही वैल्यूज में पहले जीरो रख दो फिर मीन कैलकुलेट करो, अच्छा ओके। और कोई डजंट इवन वांट टू ट्राई। ओके ठीक है, अगेन since it is ambiguous question and it will result in ambiguous decisions, it will have implications, but what is the explanation that counts, that's all that counts। अगर मैं कर रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता, मैं करूंगा since these are missing values I don't know whether that round has, उस राउंड में मिलियंस की फंडिंग हुई है या उस राउंड में जीरो फंडिंग हुई है। आई डोंट नो कि ये इन्वेस्टर ने बताने को मना किया है या स्टार्टअप ने बताने को मना किया है। आई डोंट नो किस रीजन से मना किया है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज these were some 20,000 values in a data set of 1,15,000 values। अगर परसेंटेज वाइज देखें इट अमाउंट्स टू सम 17-18%। मैं अपने क्लाइंट को क्या बता रहा हूँ, दैट इतना डेटा इसमें से मिसिंग था और मैं उसमें कुछ भी क्रंच डिसीजन नहीं लेना चाहता। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिमूव्ड दैट डेटा, कि जहाँ जो एम्बिगुअस डेटा है उसको छोड़ो, जो अवेलेबल डेटा है कम से कम उससे डिसीजन लें। तो एटलीस्ट 17% data is missing, that's okay, but remaining 80 to 83%, which is rock solid available to me, I'm basing my decision on that data। seems okay। क्लाइंट हमारा सीईओ मैडम ऑफ स्पार्कमेंट मान जाएगी इस बात से, लगता है कन्विंसिंग। ठीक है, तो लेट्स सी। टाइप वाइज ग्रुप हमने पहले कर लिया था, टाइप वाइज एवरेज निकालने हैं, एन ए डॉट आर एम कर दिया ट्रू। नाउ आई सी एंड व्हाट डू वी सी। हाँ जी, चार क्वेश्चन, चारों के चारों क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे अभी इससे। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कोड क्या लिखा है, इम्पोर्टेंट ये है कि सोचा कैसे। तो ये चार क्वेश्चन आंसर हो गए, जिसकी भी एवरेज फंडिंग उन्होंने बोली थी। मेरे पास इन वन गो आई हैव ऑल द फोर अवेलेबल, नॉट फोर अवेलेबल, आई हैव ऑल द 10 अवेलेबल। अब पूछो मुझसे, मैं कोई भी बता सकता हूँ। हर बार मेरे को बार बार ये कोड करने की चेंज करने की जरूरत नहीं है, मुझसे जो भी पूछोगे वही उठा के बता दो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेबल कह रहे हैं कि कंसिडरिंग द कांस्टेंट ऑफ स्पार्क फंड, जो उनका कांस्टेंट था 5 to 15 मिलियन, कौन सी फंडिंग सबसे सुटेबल लग रही है, कौन सी लग रही है, कौन सी फंडिंग सुटेबल है। अरे देख लेते हैं, मैनुअली थोड़ी देखूंगा इसमें। मैंने एक वेरिएबल बना रखा है टाइप वाइज एवरेज, उसमें एक फ़िल्टर लगाया मैंने, क्या कह रहा हूँ, एवरेज फंडिंग ग्रेटर देन 5 मिलियन एंड एट द सेम टाइम शुड बी लेस देन 15 मिलियन।
पता चल जाएगा कौन से टाइप की फंडिंग्स क्वालिफाई करनी है इसमें हमारे क्राइटेरिया में। एंड व्हाट डू वी सी? जब फ़िल्टर कर लिया इसको, वी सी देयर इज़ ओनली वन काइंड ऑफ फंडिंग जो हमारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है। ठीक हुआ जी यहाँ तक भी बात? आई थिंक टेबल नंबर 2 कंप्लीट। सो फार वी हैव एस्टेब्लिश्ड कि मिसिंग वैल्यूज़ का जो डेटा है वो हमारे काम का नहीं है, उसे हम छोड़ते रहेंगे बिकॉज़ आई वांट टू बेस माय डिसीजंस ऑन ओनली द रॉक सॉलिड डेटा जो मेरे को बिल्कुल नंबर्स में अवेलेबल है। आई विल नॉट टेक एम्बिगुअस डिसीजंस। आपका पैसा इंपॉर्टेंट है मैम, मैं ऐसे ही नहीं लगवा सकता जस्ट बेसिस ऑफ एज्यूमिंग के मीन से रिप्लेस कर दें या जीरो से कर दें। नो, आई एम अ गुड एनालिस्ट। देन वी फाउंड आउट कि ऑन बेसिस ऑफ दिस कंस्ट्रेंट आपके हिसाब से सिर्फ आपको वेंचर फंडिंग करनी चाहिए। वेंचर टाइप फंडिंग में ही ऐसा होता है कि 5 टू 15 मिलियन के बीच के फंडिंग मांगता है इन्वेस्टर, और ऐसे इन्वेस्टर्स आपके लिए सूटेबल रहेंगे। ना प्रॉफिट ज़रूर से ज़्यादा कम है, ना फंडिंग टाइप फंडिंग अमाउंट इतना ज़्यादा मांगेंगे जो आपसे आपके बूते से बाहर हो जाए। वेंचर फंडिंग एस्टेब्लिश्ड। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अभी हमें एक एनालिसिस और करना है, क्या है वो? अभी हमें कुछ और भी बताना है उनको। यस, उनको ये भी बताना है कि आपको फंडिंग टाइप तो वेंचर करनी है लेकिन किन कंट्रीज़ में करनी है, किस कंट्री के स्टार्टअप्स को करें जो बेटर रहेगा। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि कोई दिमाग नहीं लगाना, जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर जा रहा है वहाँ पे फंडिंग कर देंगे, प्रोवाइडेड कि वो कंट्री इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए, बस इतना काम बाकी रहा। ठीक है जी, चलें आगे। अगेन समथिंग आई विल ब्रिंग टू योर नोटिस जो आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, कुछ ने किया भी है, दैट आई लाइक। थिंक अबाउट इट। व्हेन वी हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड व्हाट वी हैव एस्टेब्लिश्ड कि फंडिंग टाइप वेंचर में ही आपका पैसा लगना चाहिए, यही काम का है। एक चीज़ तो एस्टेब्लिश हो गई, आपका कॉन्स्टेंट ही ऐसा है कि वेंचर के अलावा और कोई फंडिंग आप करोगे नहीं, कॉन्स्टेंट है। तो एक बात बताओ, अब बाकी के एनालिसिस में पूरे डेटा का क्या काम? अगर मैं अब भी पूरा डेटा लेकर के एनालिसिस करता रहूं, माय नेक्स्ट एनालिसिस मे गो रॉन्ग। क्या कह रहा हूं मैं? ये कह रहा हूं, अब आगे का एनालिसिस पूरा डेटा लेकर के क्यों करूं जब मेरे को इतने बात कंफर्म हो गई है कि वेंचर के अलावा और कोई मेरे काम की बात नहीं कर रहा। तो सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करूं ना जो वेंचर टाइप फंडिंग करते हैं, वही देखें। गेटिंग द पॉइंट? या कंफ्यूजन है, कुछ आर्गुमेंट है इसमें? बिल्कुल हाँ हाँ सर मत हिलाओ मेरी बात पे, अगर गलत लगती है तो बोलो कि ये बात ठीक नहीं लगती। मैं आपसे कह रहा हूँ व्हेन इट हैज़ बीन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कि वेंचर टाइप फंडिंग के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। और बहुत कुछ हो रहा होगा दुनिया में, प्राइवेट इक्विटी शायद हो सकता है सबसे ज़्यादा कहीं पे हो रही हो, लेकिन मैं कर नहीं सकता उस टाइप की फंडिंग, तो क्यों बात करूँ उसकी? अपने वेंचर टाइप देखते हैं ना, उसमें क्या चल रहा है वेंचर टाइप वालों में। वो लोग कहाँ जाते हैं, कौन से कंट्री को फंड करते हैं, वहाँ कौन टॉप कंट्रीज हैं। मेरा सरोकार ही उससे है, तो वही कर रहे हैं। आई एम फिल्टरिंग द वेंचर डेटा ओनली फ्रॉम मास्टर डेटा फ्रेम, और आगे से सिर्फ इस वेंचर डेटा की बात करते हैं कि इसमें क्या चल रहा है, वेंचर टाइप फंडिंग में क्या क्या काम होता है, उसमें हमारे काम की क्या बात। बहुत सारे लोगों ने किया नहीं है।
ठीक है, वेंचर टाइप डेटा हमने फिल्टर कर लिया। वेंचर टाइप डेटा देखें, यू सी टोटल डेटा वाज 1 लाख समथिंग रोज, वेंचर डेटा इज ओनली 55,000 रोज। तो मेरे काम का सिर्फ इतना ही डेटा है, दिस 55,000 रोज का डेटा। किन ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग हुई है, फंडिंग टाइप तो चलो वेंचर ही हो गया। अब पता है इसमें क्या आ रहा होगा, फंडिंग राउंड टाइप इस डेटा में क्या आ रहा होगा? वेंचर डेटा में फंडिंग राउंड टाइप क्या होगा? वेंचर, सबका वेंचर। ये कॉलम कैसा हो गया? रिमेंबर रिडंडेंसी, एक रिडंडेंट कॉलम है अब आपके डेटा में जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, काम खत्म हो चुका है उसका। खैर, अच्छा अब हमें मतलब था जी किससे, कंट्री कोड से। अब हम कंट्रीज पे आ गए। तो हम क्या कहते हैं, कंट्री कोड, अच्छा सारे हम लोअर टू लोअर कर चुके हैं ऐसे अप्लाई यूज करके। तो अब की बार मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या देखना चाह रहे हैं? अब हम एक बात बताओगे, क्या देखना चाह रहे हैं? हमसे इन्होंने क्या कहा था कि कंट्री इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए। इसके बाद हमारा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, हम वहाँ जाएँगे जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर जाता है। जहाँ सबसे ज़्यादा अलग लोग फंडिंग कर रहे हैं, वहीं हम भी चल देंगे। तो लेट्स, इसका मतलब कंट्री कोड पे ग्रुप बाय कर लिया जाए। कंट्री कोड पे ग्रुप बाय कर लिया जाए। और समराइज़ किस पे कर लिया जाए? सॉर्ट तो बाद में करेंगे, समराइज़ क्या करना है, ये बताओगे कोई? भाई कोई कंट्री कितना फ़ेवरेट है इन्वेस्टर्स का, इसमें 2 एस्पेक्ट आते हैं। नंबर 1 कि उस कंट्री में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर जा रहा है, यानी नंबर ऑफ राउंड्स ज़्यादा हो रहे हैं। यही तो बात हुई। उसकी कंपनीज़ नंबर ऑफ राउंड्स में ज़्यादा अपीयर हो रही है, यानी ज़्यादा इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं। सो दैट इज़ नंबर ऑफ राउंड्स। ठीक बात है। सेकंड इज़ अमाउंट, ऑब्वियसली। 2 एस्पेक्ट आते हैं। चलो पहले देखते हैं किस कंट्री में ज़्यादा फंडिंग लगती है। पहले को देखते हैं, एक में ही तो देख लो। यस, समराइज़ आपको ये भी पावर देता है। डीप्लायर का समराइज़ फंक्शन, एक ही बार में आप मल्टीपल समरीज़ भी देख सकते हैं। मैं इसमें क्या कह रहा हूँ, कंट्री वाइज़ ग्रुप, ये जो वेंचर डेटा को ग्रुप किया था कंट्री कोड में, तो कंट्री कोड के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग हो गई। अब मैं कह रहा हूँ समराइज़ कर दो इस ग्रुप को, और समरी क्या देखनी है, एक तो टोटल फंडिंग, कितना टोटल पैसा आता है इस कंट्री के पास, और एक समरी और कह रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। और ये कैसे निकलता है, द फंक्शन इज एन। ये डीप्लायर का एक्सक्लूसिव फंक्शन है एन, इट इज़ फॉर काउंट, नंबर ऑफ राउंड्स। तो पता चल जाएगा नंबर ऑफ राउंड्स कितने हुए हैं। नंबर ऑफ राउंड्स ही करता, चलो इन्वेस्टर भी नहीं बोलते, इन्वेस्टर तो मल्टी, एक ही इन्वेस्टर के मल्टीपल राउंड भी हो सकते हैं, बट राउंड से पता चल जाएगा कि कितनी बार कोई इन्वेस्टर आता है इस कंट्री में। ठीक है जी। एंड देन देयर इज कंट्री वाइज ग्रुप। So there are 104 countries
NA.RM किया है, हाँ वो तो किया है, चलो ठीक है, वो तो हमें पता है क्यों किया है, बोल सकते हैं हम, पहले ही बोल चुके हैं हम, वो तो हमने पहले ही बता दिया CO मैम को, तो अब तो कर ही लेंगे। Bracket mistake, brackets mistake, my mistake। तो कंट्री वाइज समरी कुछ ऐसा निकल के आता है, देयर इज अ कंट्री कोड विच इज नॉट NA भी नहीं है, ब्लैंक आ गया वहाँ पे किसी वजह से। ये ब्लैंक कब आता है, जब ऑपरेटर डेटा एंट्री ऑपरेटर मस्ती में ब्लैंक नहीं छोड़ा उसने, या तो एंटर दबा दिया है या व्हाइट स्पेस दबा दिया है, कुछ दबा दिया है। तो यहाँ पर अब एक करेक्टर रिकॉर्ड है, देयर इज अ कैरेक्टर रिकॉर्डेड। तो आर को लग रहा है कि ये मिसिंग वैल्यू तो है नहीं, यहाँ पर एक कैरेक्टर है, बट वो कैरेक्टर क्या है, इट इज जस्ट व्हाइट स्पेस या एंटर। एंटर क्या, एंटर होता है तो कैरेक्टर क्या आता है, कोई बताएगा, सी वाले, जावा वाले। अगर डेटा एंट्री के समय कहीं पे एंटर प्रेस कर देते हैं तो वो कैसे रिकॉर्ड होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग, इट इज \n, \n means enter, \t means tab। क्या बात कर रहे हो, सी का जावा का कोई नहीं है क्या यहाँ पे, पता होगा उनको, जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनका ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हिडन करेक्टर एंटर हो गया है और आर को लग रहा है वहाँ पर करेक्टर तो है, तो ब्लैंक तो है नहीं है, ब्लैंक नहीं है, तो वो NA नहीं दिखा सकता इसको, लेकिन देखने में हमें व्हाइट स्पेस दिख रहा है, वो करेक्टर दिखते नहीं है। एक्सेल में अगर कहीं किसी सेल में स्पेस प्रेस कर दोगे तो वो सेल में क्या दिखेगा आपको, कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन कैरेक्टर है वहाँ पर एक वाइट स्पेस। ओके, खैर वापस आते हैं। हमने कहा नंबर ऑफ राउंड्स इस कंट्री में कितने हुए हैं ये भी पता है, फंडिंग किस में कितनी हुई है वो भी पता है। चलो पहले नंबर ऑफ राउंड्स के हिसाब से अगर सॉर्ट करें इसको, डेटा को, मतलब कोड से भी कर सकते हो। Guys, I think I lost audio again. Audible now? Okay. वेल, तो यहाँ तक बात हो गई थी, नंबर ऑफ राउंड्स के अकॉर्डिंग देख रहे थे। कोड से भी आप इसको कर सकते हो, क्या करना है, अरेंज करना है इसको, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ राउंड्स। कोड आप करके देख लेंगे, मैं जस्ट यहीं पे दिखा रहा हूँ जल्दी से। एंड टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 3 में हमसे क्या बोला है, टॉप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, सेकंड, थर्ड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, टॉप इन टर्म्स ऑफ, टॉप इन टर्म्स ऑफ द फेवरोसिटी ऑफ टुवर्ड्स स्पार्क फंड्स। हमसे क्या बोला है कि फंडिंग जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर जाते हैं
फंडिंग करने वहीं चलेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ राउंड्स के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ राउंड्स यानी जहाँ जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ राउंड्स फंडिंग हुई है, सबसे ज़्यादा टाइम्स इन्वेस्टर्स वहाँ पर गए हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर वन इज यूएस। नंबर वन इज यूएसए। बट क्या ये इंग्लिश स्पीकिंग है? बताते रहो जल्दी जल्दी। वेरीफाइड। तो नंबर वन यूएस और इंग्लिश स्पीकिंग भी। वेरीफाइड। नंबर टू इज ब्लैंक। ब्लैंक कहाँ पे आया होगा? जिन कंपनीज ने अपना कंट्री नहीं बता रखा है या डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, समहाउ ये डेटा है नहीं। जिनका डेटा नहीं है उनके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कहोगे? यार क्या बताओगे क्लाइंट को? कहाँ इन्वेस्ट कर दो मैम? ब्लैंक। कुछ नहीं कर सकते इसका। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना कंट्री कोड नहीं बनाया, तो उनका कलेक्टिवली ब्लैंक दिख रहा है। अब ये भी नहीं पता कि वो एक ही कंट्री की हैं या अलग अलग कंट्रीज की कंपनी है, तो छोड़ना पड़ेगा इसको। छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आया ये, दिस इज जीबीआर। जीबीआर मीन्स, व्हाट इज जीबीआर? यस, जीबीआर रिप्रेजेंट्स ग्रेट ब्रिटेन, which is United Kingdom basically. So it is United Kingdoms, but again हमारा कांस्टेंट आया। अब कंट्री तो पता चली। क्या ये इंग्लिश स्पीकिंग है? क्या ये इंग्लिश स्पीकिंग है? अरे यही तो इंग्लिश स्पीकिंग है। बाकी सबने तो टांग तोड़ी है अंग्रेजी की। सो यस, ओके, फर्स्ट इज यूएस, देन सेकंड इज क्वालिफाई हो गया यूके के स्टार्टअप्स। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर भी जाते हैं एंड इंग्लिश स्पीकिंग भी। तो हमारे लिए सेकंड हाईएस्ट ये हुआ। वेरी फाइन। थर्ड कंट्री हु इज इन द लिस्ट नेक्स्ट? CHN। जीबीआर के बाद CHN आता है। CHN स्टैंड फॉर कैनेडा। हाउ कम कैनेडा इज CHN? CHN, yes, CHN is China actually. ठीक है, अब जैसे भी हैं लिस्ट में तो आ रहे हैं, लेकिन क्या हमारे काम के हैं? इज चाइना इंग्लिश स्पीकिंग? इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, हमारे लिस्ट में नहीं है।
What is the language officially popular there? Mandarin, correct. तो ठीक है, आ तो रहे थे ये, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है तो हमारे काम के नहीं हुए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, दैट इज कैन। दिस इज कैनेडा। अगली लिस्ट में कनाडा आया, तो क्या ये इंग्लिश स्पीकिंग है? क्या ये इंग्लिश स्पीकिंग है? हाँ, ये तो इंग्लिश स्पीकिंग है। तो थर्ड इज कनाडा। नाउ जस्ट वेट। ये किसके अकॉर्डिंग आया है? जब हम देख रहे हैं नंबर ऑफ राउंड्स, ये नंबर ऑफ राउंड्स कितने ऑर्गेनाइज किए हैं इन्वेस्टर्स ने वहां पर। अच्छी बात है, यानी इन्वेस्टर्स ज्यादातर इन कंपनीज के पास जाना पसंद करते हैं, इन कंट्रीज में के स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए। दे ऑर्गेनाइज राउंड एंड देयर हैव बीन मल्टीपल राउंड्स, so that's pretty much obvious। फंडिंग भी देख लें किस कंट्री में कितनी जाती है, शायद कुछ पता चल जाए। अभी तो देखने में ऑर्डर ये लग रहा है यार, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर यूएस जाते हैं, तो शायद टोटल फंडिंग भी यूएस को ज़्यादा होती हो। अलग से देखने की ज़रूरत है क्या? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, पूछ क्या रहा हूँ, आई वॉन्ट यू टू ओपन योर आइज एंड सी व्हाट कैन बी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम। हमने देखा नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के जाने से ये ऑर्डर आता है, फर्स्ट इज यूएस, सेकंड यूके, थर्ड इज कनाडा अकॉर्डिंग टू अस। तो फिर तो टोटल फंडिंग भी सबसे ज़्यादा इन्हीं कंट्रीज में हो रही होगी, यस और नो? यस और नो? हाँ, हर बात में हाँ नहीं मिलानी होती मेरे। नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है यूके में इन्वेस्टर्स ज़्यादा गए हैं, लेकिन फंडिंग किसी और कंट्री की ज़्यादा हो रही हो, एक ही राउंड में ज़्यादा फंडिंग कर दी हो किसी ने, मे बी पॉसिबल। तो देख लेना चाहिए, इतना भरोसे के, इतना भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ते एनालिसिस को। लेट्स से, तो दिस टाइम ऑर्डरिंग इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टोटल फंडिंग। कंट्री वन इज अगेन, ओके, नंबर वन इज यूएसए अगेन अकॉर्डिंग टू टोटल फंडिंग, नो क्वेश्चंस अबाउट इट। नंबर ऑफ इन्वेस्टर भी ज़्यादा गए हैं, फंडिंग भी सबसे ज़्यादा वहीं हुई है, बहुत ही बढ़िया। सेकंड, ये देख रहे हो चाइना कहाँ था पहले वाली टेबल में? नीचे कहीं था, यहाँ चौथे पांचवें नंबर पे आ रहा था। फंडिंग राउंड्स कम हुए हैं, लेकिन फंडिंग अमाउंट सबसे ज़्यादा हुआ है, सेकंड हाईएस्ट। वो अलग बात है, हमारे काम के नहीं। ठीक है जी। ऑन थर्ड रैंक इट इज़ ब्लैंक, तो दिस इज समथिंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, छोड़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज जीबीआर। जीबीआर मीन्स यूके। यूके वो तो हमारे काम का होता है। वेरी फाइन। तो फर्स्ट टू कंट्रीज एस्टेब्लिश्ड, थर्ड कंट्री नेक्स्ट कम्स इज आई एंड डी, इंडिया। इन टर्म्स ऑफ टोटल फंडिंग नंबर ऑफ राउंड्स कम हुए थे, देख रहे हो, इसके जस्ट बाद कनाडा है, वही बात जो हम अभी कर रहे थे। नंबर ऑफ राउंड्स कम हुए हैं कनाडा से, लेकिन फंडिंग कनाडा से ज़्यादा हुई। बट क्या इंडिया इंग्लिश स्पीकिंग है? देयर इज कांस्टेंट येट। क्या कैसी बातें कर रहे हो तुम? इंडिया है इंग्लिश स्पीकिंग। ऑफिशियल लैंग्वेज है, यस। अब वैसे तो नहीं है।
पर लिस्ट में है तो चलो मान लेते हैं, हमारा क्राइटेरिया ही वो था। नेक्स्ट इज इंडिया। अब हो गया झगड़ा, अगेन एम्बिगुअस डिसीजन। ये दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, एम्बिगुअस डिसीजन। अब किसकी मानूं? यूएस यूके प्रेटी मच सॉर्टेड, मुझे बतानी है टॉप 3 कंट्रीज। यूएस यूके ऑब्वियसली टॉप 3 कंट्रीज में क्वालिफाई हो रहे हैं विद बोथ द क्राइटेरियंस। थर्ड कंट्री किसे बोलूं? नंबर ऑफ राउंड देखता हूं तो कनाडा है। अगर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ही देखने हैं तो कनाडा है। लेकिन अगर फंडिंग देखने लगूं, यानी अगर अमाउंट की बात करने लगे, तो इंडिया है। किसे मानूं थर्ड हाईएस्ट? किसे मानूं थर्ड फेवरेट कंट्री? 3 कंट्री पूछी हमसे। इंडिया बिकॉज आई एम इंडियन, इज इट सो? और कनाडा बिकॉज आई एम एनआरआई इंडियन, इज इट सो? एनीवे आई एम इंडियन। सी अगेन एम्बिगुअस डिसीजन। एम्बिगुअस डिसीजन इन द सेंस, अगेन एम्बिगुअस डिसीजन हो गया ना झगड़ा। दो क्राइटेरिया हैं और दोनों के हिसाब से अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। सेम आ जाता तो कोई बात ही नहीं थी। नाउ यू हैव टू स्पीक अबाउट इट। अगर मैं कहूँ नथिंग रॉन्ग इन एनी वे, मैं बोलूँ कनाडा, दैट मैम top 3 countries for your investors are US, UK and Canada because you asked me about number of investors. Sorted. Or I can say, ma'am, according to me, the best countries for you to invest is US, UK and India. Because although you asked me about number of rounds, but in my analysis, it came out that funding amount is more for India rather than Canada. And as far as my knowledge of business uh, goes, total funding is more substantial than number of investors. What does it matter how many investors came? What matters is how much amount they funded. Seems likely? Yes or no? मान जाएंगी सीईओ मैम ऐसा समझाऊंगा तो? क्या लगता है? ठीक है, तो अगेन you have to make a choice and you should have a reasonable explanation to that, whatever choice you make. This was your project assignment all in all. ठीक है जी, now check your mail. Please check your mail quickly. Yes Devesh, switch on mic. Why okay, switch off mic and type it, type it. हेलो। हाँ yes Devesh, clear now. हाँ सर, मैं कह रहा हूँ जैसे अभी आपने डेटा का बनाया है कि नंबर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं जो, तो हम जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है खाली उसके बिहाफ पे ही बोल सकते हैं या एक जनरलाइज सिनेरियो लेके भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि हमने ये वाला ही क्यों सिलेक्ट करा? जनरलाइज कैसे? जैसे आपने बताया, हमने डेटा देखा, डेटा के हिसाब से कनाडा हम्म इंडिया से थोड़ा बेहतर था डेटा हम्म के हिसाब से अगर लेके चलें तो। हम्म पर अब जैसे मैं देखूं कि
कनाडा इज ऑलरेडी अ डेवलप्ड कंट्री, तो इंडिया अंडर डेवलपमेंट में है, तो स्कोप ज्यादा होगा कनाडा से, लाइक दिस अगर स्टेटमेंट आर्गुमेंट दे तो। See, I have tried to keep it established so far, and in subsequent lectures also I will try to make it a point time and again that you don't talk anything without data. You don't talk on assumptions and presumptions and preconceived notions. Cannot ठीक है सर। cannot be biased. जो अभी हमने सिनेरियो देखा था, let's choose India because I am Indian. No, patriotism is a very good notion. Keep it aside for analysis from analysis. ओके सर। Okay. Check your mails, guys. You have received a dataset. Download it and tell me what you see. What is this dataset talking about? ऐसा कुछ डेटासेट रिसीव हुआ है आप लोगों को? मैं जस्ट एक्सेल में दिखा रहा हूँ, आप लोग आर में रीड करेंगे इसको। What is this data talking about? Is it has several aspects of, हाँ जी, किन के बारे में बात कर रहा है? पैसेंजर्स ऑफ द वॉयज ऑफ टाइटैनिक। पहले सुना है इसके बारे में, इस डेटा सेट के बारे में? नाम सुना हो, पता हो कुछ किसी को? एनीबॉडी? इट इज अ वेरी पॉपुलर डेटा सेट among machine learning. किस किस बारे में बात कर रहा है? What are the aspects? It is telling you survived, whether this passenger survived or not in this in the on that fateful night of the accident on the maiden voyage of Titanic. 0 means deceased, 1 means survived. P class is, हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं? डू यू रियलाइज क्या होने वाला है? With help of several analysis, I want you to find out. अभी आप लोगों को विजुअलाइजेशन भी आता है, आप लोगों को डिप्लायर भी आता है, बेसिक एनालिसिस आप ऑलरेडी जानते हैं। What I want you to find out is, so this is really your open end. This is going to be your open end assignment. प्रेडिक्ट नॉट प्रेडिक्ट, अभी प्रेडिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ शुभम। आई वांट यू टू फाइंड आउट कि उस दिन जो भी हुआ होगा, इनके सर्वाइवल में देयर आर वेरियस पैरामीटर्स वी हैव। क्या किसी पैरामीटर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इनके सर्वाइवल? व्हाट मेड डिफरेंस बिटवीन दोज हु सर्वाइव्ड एंड दोज हु डिसीज्ड? हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। क्या इन सब बातों से कुछ फर्क पड़ा कि सर्वाइवल के चांस किसी के तो अच्छे हो गए, कोई सर्वाइव कर गया, कोई नहीं कर पाया? क्या कुछ ऐसा हम फाइंड आउट कर सकते हैं? व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स यू आर हैविंग? थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, इट्स ऑलरेडी टाइम, तो प्लीज बी अटेंटिव।
ठीक है, सर्वाइव्ड समझ आया। 1 मीन सर्वाइव्ड, 0 इज डिसीज्ड। तो एक्चुअली 0 1 नहीं होना चाहिए इस कॉलम को, कैटेगोरिकल होना चाहिए था। पैसेंजर क्लास, पैसेंजर क्लास, हाँ जैसे ट्रेन में होती है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी। तो शिप में क्या होगा? शिप में क्या होंगी? ऐसे ही होंगी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। और कुछ ना कुछ फैसिलिटीज का डिफरेंस होगा उनमें, यही तो होगा, यही तो मतलब हुआ इसका। हाँ, सेमी डिलक्स, डिलक्स, सुपर डिलक्स, काइंड ऑफ थिंग। तो हम समझ गए। अगेन इट इज कैटेगोरिकल। और कैटेगोरिकल कैसा है? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल। समझते रहना इन चीज़ों को। पैसेंजर क्लास में 1 2 3 लिखे हुए हैं, इन 1 2 3 का मतलब 1 2 3 नहीं है। 1 और 3 का एवरेज 2 होता है। फर्स्ट एसी और थर्ड एसी का एवरेज सेकंड एसी नहीं होता। अरे समझ आ रहा है? मानसी समझ नहीं आ रहा? और कोई? क्या समझ नहीं आया इसमें? मानसी माइक ऑन कर लो। और कोई? द एस टीम, संकल्प, शिवांक, बोल नहीं रहे हो आज? वसुंधरा वेरी साइलेंट टुडे, गुस्सा है क्या? अच्छा ठीक है ठीक है शंकर। ठीक है, पैसेंजर क्लास, ये वाली बात समझ आ गई। नेम। अच्छा एक बात बताओ, पैसेंजर क्लास का कुछ लेना देना हुआ होगा सर्वाइवल से? वैसे क्या लगता है, एनालिसिस तो बाद में करोगे तुम जो करोगे। जस्ट बाय ह्यूमन इंस्टिंक्ट, जस्ट बाय एनालिस्ट इंस्टिंक्ट, क्या कहता है ब्रेन था आपका? पैसेंजर क्लास से कुछ लेना देना हुआ होगा। ओके। पैसेंजर नेम, पैसेंजर के नाम है। किस पैसेंजर का क्या नाम था? इट इज इन द सिंटैक्स ऑफ सेकंड नेम, देयर सरनेम, कॉमा, टाइटल एंड फर्स्ट नेम, काइंड ऑफ दिस थिंग। नाम से तो खैर वैसे ही समझ आ रहा है, नाम से क्या फ़र्क पड़ेगा? अरे किसी का नाम एंथोनी था या एंटोनियो, क्या फ़र्क पड़ा होगा? तो चलो देख लेना, तुम्हारी मर्ज़ी है। जेंडर, जेंडर से कुछ फ़र्क आया होगा? जेंडर से फ़र्क आया होगा? लगता तो है, मूवी देख रखी है हमने, रोज़ बच गई थी, जैक निपट गए थे। चलो देख लेना। एज, एज तो लगता है, एज से तो फ़र्क पड़ा होगा शायद। ओके। टिकट, और नो, व्हाट द हेल इज़ टिकट? टिकट का मतलब क्या हुआ? टिकट नंबर? हाँ, जैसे पीएनआर नंबर होता है अपना, फ्लाइट का या ट्रेन का, काइंड ऑफ टिकट नंबर। कुछ फ़र्क पड़ा होगा टिकट नंबर से? चलो, मैनी ओपिनियंस देख लेना।
Fair means the fare of this individual. This was Mr. Owen Brown. He was traveling on this ticket number and his fare was this much. फेयर से कुछ फर्क पड़ेगा? किसने कितना पैसा दिया टाइटैनिक बोर्ड करने का, इस बात का कुछ लेना देना हो सकता है फाइनली इस बात से कि वो बचेगा या कि नहीं बचेगा? अच्छा चलो देख लेना। एम्बार्क्ड, एम्बार्क मीन एम्बार्क मीन्स लिटरली एम्बार्क का मतलब क्या होता है? एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी। Yes. Embark means where did this passenger board the Titanic ship? See, before the accident, Titanic has already made 3 halts. तो उसी की बात कर रहे हैं। ओके, लाइक अब्रॉड, वसुंधरा, नॉट गेटिंग इट। अब्रॉड मीन about, you mean, I mean to say, I'm assuming it is just spelled wrong. अच्छा ठीक है, ओके ओके। So Titanic has already made 3 stops. So there could have been 3 spots जहाँ से लोग टाइटैनिक बोर्ड कर सकते थे। S stands for Southampton, आगे शुभम। Q stands for Queensland and C stands for somebody Cherbourg। ठीक है जी, तो दैट इज एम्बार्क। अब एक बात बताओ, अच्छा एम्बार्क से कोई पैसेंजर कहाँ से बोर्ड किया, इससे फर्क पड़ा होगा सर्वाइवल पे? पड़ सकता है। हम्म। मैं अगर बेंगलोर जा रहा हूँ, बेंगलोर राजधानी से, एंड गॉड फॉरबिड बट इट हैपन्स देयर इज एन एक्सीडेंट, मेरा उस एक्सीडेंट में क्या होगा? क्या इस बात पे कोई फर्क पड़ेगा कि मैं दिल्ली से चला था या जयपुर से चला था या इंदौर से चला था? चलो ठीक है, आई एम लीविंग इट टू यू। You have visualization tools now, you have deep layer at your hand, you have some base functions. Try your hands on। ठीक है जी, ये ग्रुप में नहीं करना है, इट इज जस्ट फॉर इंडिविजुअल। ग्रुप में if you want to do, you can yes take help of each other, yes you can discuss among yourself, it is not basically assignment, it is not graded, I want you to practice। ठीक है, फाइंड आउट, बात करेंगे 1-2 दिन बाद इसकी। कल ज़्यादा कोडिंग पे जोर नहीं रहेगा, कल थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ मैथमेटिक्स, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। Okay ji, let's wind it up for today. Here itself, I'm turning off recording, but I'll stay for a couple of minutes for to take any questions if there is.